Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and today we are going to start our first chapter of the company law, that is Introduction to Company Law. First we will talk about Companies Act 2013. Let's see the important points of this act. The name is Companies Act 2013 and it extends to whole of India, having total 470 sections which are divided into 29 chapters, and there are 7 schedule attached to this act. Apart from schedule, there are 21 chapters for which rules have been notified by the government. Now, all the 470 sections now are not in force, so you have to see carefully that only total 282 sections have been notified by the government so far. इसका मतलब only 282 sections of the Companies Act अभी फोर्स में हैं और बाकी के लिए Companies Act 1956 रेफर करना पड़ेगा. So let's see what are the sections which have been notified. Section number 1 was notified by the government on 29th of August 2013. तो ये अभी फोर्स में है. इसी के साथ there are total 98 sections were notified on September 12, 2013. They are in force. Apart from this, another 183 sections were notified on 1st of April 2014. So at present, there are 282 sections which have been notified by the government and which are in force now. So Companies Act 1956 shall continue to apply on all the matters for which sections have not yet been notified by the गवर्नमेंट. तो इसका मतलब अभी कंपनीज एक्ट 2013 तो लग ही रहा है, एंड एट द सेम टाइम there are certain matters for which you have to refer the Companies Act 1956 as well. Now first let's see the schedules. As we have already seen, there are total 7 schedules mentioned under New Companies Act 2013. And what are these schedules all about? Let's see one by one. Schedule number 1, format of memorandum and articles are given. So schedule 1 contains the format of memorandum and article. Schedule 2 contains the computation of depreciation, so it is related to depreciation. Schedule 3, preparation of balance sheets and the profit and loss account of the company. The format of balance sheet is already given in schedule 3 and the profit and loss account is also given in schedule 3. Then schedule 4 contains the code of independent director. Schedule 5, condition to be fulfilled for appointment of a managing director or whole-time director or a manager, and without the approval of central government. So appointment, if you want to make the appointment of managing director, whole-time director or manager without approval central government, you have to refer schedule number 5. Schedule number 6 contains the term infrastructural projects and infrastructural facilities. Schedule 7 contains the activities which may be included by the companies in their corporate social responsibility policies. अब ये जो 7 शेड्यूल है इसको आपको जस्ट ध्यान में रखना है. अभी अगर आपने जस्ट कंपनी लॉ स्टार्ट किया है तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट बाय द टाइम यू विल फिनिश द कंपनी लॉ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दी शेड्यूल. अभी जस्ट आपको ये याद रखना है देयर आर 7 शेड्यूल और हर शेड्यूल में क्या क्या दे रखा है ये पता होना चाहिए. Similarly, we have already seen that for 21 chapters, rules have been notified. तो अभी ये जो रूल्स हैं अभी जस्ट आपको ये देखना है, आपको ये याद नहीं करना है. वेन एवर द मैटर विल कम विच इज रिलेटेड टू रूल्स वी विल रेफर द रूल्स इन डिटेल लेटर ऑन. So I am not describing all these rules, you just have to remember that these many rules are there. Now we are going to see our the basic term. बेसिक टर्म कंपनी क्या होती है वो पहले देख लेते हैं. हाउ इट इज डिफाइंड अंडर द एक्ट. अंडर द एक्ट कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 220.
220 में कंपनी टर्म को डिफाइन किया गया है। इट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 और 1913 एंड सो ऑन। यानी ऐसी कोई कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या कोई पिछले कंपनी लॉ एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको हम बोलेंगे कंपनी। ये विथ सेक्शन आपको कोट करना है एग्जाम में। केवल कोट करने से नहीं चलेगा, इसके साथ आपको कुछ जजमेंट भी लिखना पड़ेगा कोर्ट ने जो डिस्क्राइब किया है। सो देयर वाज अ पर्सन जस्टिस लिंडले ने जो डेफिनेशन दी है कंपनी की, इट इज वेरी गुड, सो यू हैव टू कोट दिस। He described company as association of person. So let's say there are so many person who formed an association. So this is an association of person. These persons will be called its members. Then he says that association of person, why it is formed? To contribute money. ये सभी क्या करते हैं? Contribute करते हैं money to a common stock. तो यहां पर सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी टू अ कॉमन स्टॉक, एंड दिस स्टॉक इज एम्प्लॉयड इन सम ट्रेड और बिजनेस। तो ये जो मनी रहती है ये कहां पे इस्तेमाल होती है? ट्रेड और बिजनेस में। एंड इससे जो भी प्रॉफिट होता है, दिस प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय दी सच पर्संस। तो ये जो भी प्रॉफिट होता है ये सभी इसको शेयर करते हैं। सो अगेन यू सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो जितने भी पर्सन हैं जो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उसको मेंबर कहा है जस्टिन लिंडले ने। हु कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक, तो ये जो कॉमन स्टॉक है ये पैसा इकट्ठा किया है, इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट एम्प्लॉय इन ट्रेड और बिजनेस, तो ये कैपिटल कहां पे एम्प्लॉय करते हैं? ट्रेड और बिजनेस में। एंड ट्रेड और बिजनेस में से जो प्रॉफिट होता है वो उसको शेयर करते हैं। तो वॉट एवर दे शेयर, ये जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इसको बोला गया है डिविडेंड ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स सी द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी की डेफिनेशन आपने देख ली है सेक्शन 220 में। नाउ व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी? दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम सो मेनी टाइम्स। सो अगर एक फुल लेंथ क्वेश्चन आया है काफी मार्क्स का, तो यू हैव टू राइट ऑल दीज नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वी विल सी ऑल दीज इन डिटेल ऑल्सो। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। पहला, देर इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी इज हैविंग अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी को सिटीजन नहीं माना गया है। बट कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस, कंपनी के पास खुद की नेशनैलिटी रहती है और रेसिडेंस भी रहता है। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। सिक्स्थ है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी हमेशा चलती ही जाती है जब तक कि उसको खत्म नहीं किया जाता एज पर दी लॉ। सेपरेट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी रहती है कंपनी की वो अलग रहती है शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी से। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं इसके एक से दूसरे को। कैपेसिटी टू स्यू, इसका मतलब कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इट्स ओन नेम। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, इसकी कोई मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है जिससे ये क्रॉस नहीं कर सकती, यानी इसके जो फॉर्मेशन के समय इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाहर जाके ये काम नहीं कर सकती, दैट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद नहीं काम कर सकती, तो देयर इज अ सेपरेट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ डिसीजन वो लेते हैं, उनके थ्रू ये काम करती है। देन वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, तो ये एक तरह की वॉलेंट्री एसोसिएशन है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बनाई गई है। वॉलेंट्रीली लोग साथ में आते हैं, और किसके लिए आते हैं? टू अर्न द प्रॉफिट, टू डू द बिजनेस, टू अर्न द प्रॉफिट। इसका एक एक्सेप्शन है नॉन प्रॉफिट कंपनी, वो हम बाद में देखेंगे। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बाय लॉ।
एक इंसान है, उसकी नेचुरल डेथ होती है, बट कंपनी की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। कंपनी इज वाउंड अप बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कंपनी अगर बंद होगी तो वो एज पर प्रोसेस ऑफ लॉ बंद होगी। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का कि राइट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, तो आप ये 14 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक पॉइंट पूछा है, डिस्क्राइब द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी और डिस्क्राइब दैट इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, तो आपको वो स्पेसिफिकली पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी ईच पॉइंट वन बाय वन। Now the first point is that company is having a corporate personality. इसकी एक अलग personality रहती है, शेयर होल्डर से अलग रहती है वो। So suppose this is a company and these are the shareholders, these are the board of directors जो उसको govern करते हैं, उसके मैनेजमेंट को देखते हैं। So this company is different from shareholders and board of directors, so it is having a different corporate personality of its own. Why we say? Because it is an artificial person. इसकी natural birth नहीं होता है, इसको create किया जाता है as per law. अगेन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इसकी इसलिए भी कहते हैं कि इट हैज इट्स ओन नेम, इसका खुद का नाम होता है। एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड अपना खुद का नाम होता है। इट हैज ओन सील, उसकी एक खुद की सील होती है। इट्स एसेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, इसकी जो एसेट्स रहेंगी वो अलग रहेंगी। शेयर होल्डर कैन नॉट से इट्स माइन, सो एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सेपरेट। It is a different person from the members who compose it. So shareholders, members although they form the company, but company itself is a different person from the members. It is capable of owing the property. ये company property को own कर सकती है। It can get the borrowing, it can borrow the money, it can incur the debt. हैविंग अ बैंक अकाउंट, ये अपना एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। इट कैन एम्प्लॉय द पीपल, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइड पार्टीज, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन द सेम मैनर एज इंडिविजुअल। इसके खिलाफ सूट भी फाइल किया जा सकता है कोर्ट में, और ये खुद भी दूसरों के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। इसी के साथ मेंबर्स आर ओनर्स, however they can be creditors simultaneously। तो अभी हमने देखा कि this company is different। एक मेंबर है, शेयर होल्डर है, it is a owner, he is a owner, shareholder is treated as owner, but he can be creditor as well, creditors of this company as well। So it shows that this company is different from shareholder। shareholder cannot be held liable for acts of the company। तो अगर कंपनी ने कुछ वायलेशन किया है तो शेयर होल्डर नॉर्मली विल नॉट बी लायबल फॉर दैट डिफॉल्ट डन बाय द कंपनी, इवन इफ होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। अगर एक शेयर होल्डर ने इसकी सारी शेयर कैपिटल इस कंपनी की होल्ड कर रखी है, तो भी कंपनी के जो एक्ट्स हैं उसके लिए शेयर होल्डर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। So all these things shows that company is having a separate corporate personality। इसके ऊपर नॉर्मली एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है and you have to write all these points here। Apart from this, आपको इसमें केसेस भी कोट करने, केसेस इसके ऊपर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बट आपको कुछ एक केसेस को कोट भी करना है साथ में, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सबसे पहला केस है जो फेमस केस है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो इसकी पर्सनालिटी शो करती है, इट्स ए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सो सोलोमन एक फेमस केस है जिसमें कहा गया था कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब ये पूरा केस अगर आपको देखना है तो सेपरेट वीडियो में आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन एग्जाम में आपको ये कोट करना है बॉटम लाइन। हमारे लिए बॉटम लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा केस आप आराम से देख सकते हैं अलग वीडियोस में। दूसरा केस आपको जो याद रखना है वो है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट है,
एंड इसका जो मैजिक है पर्सनालिटी का वो ऐसा है कि एक सेम पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर, कैन बी शेयर होल्डर, कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द सेम कंपनी। तो एक ही पर्सन है, ये डायरेक्टर भी हो सकता है इस कंपनी का, शेयर होल्डर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? बिकॉज कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन एंड हैविंग अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इसके बाद एक ऐसा केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने भुला दिया है, बट आपको एग्जाम में ये लिखना है। कैलकाटा हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट इन कोंदोली टी कंपनी लिमिटेड, ये पहला केस था 1886 का जिसमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो फीचर है वो सामने आया था। तो पहली बार जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फीचर सामने आया था वो कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिस्क्राइब किया था, इंडिया में ही हुआ था, कोंदोली टी कंपनी। हालांकि सोलोमन ज्यादा फेमस हो गया है बाद में, लेकिन पहली बार कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो फीचर सामने आया था, इट वाज इन कोंदोली टी कंपनी लिमिटेड इन 1886। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इस केस में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इस केस में एक जमीन थी जो ट्रांसफर कर रहा था पर्सन उस कंपनी को, और उसको बोला गया कि आप स्टैंप ड्यूटी पे कीजिए, स्टैंप ड्यूटी पे कीजिए इस ट्रांसफर पे। सो द पर्सन सेड दिस इज माय कंपनी ओनली, इट इज मी ओनली। सो कोर्ट ने कहा नो, कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी एंड वॉट एवर यू आर ट्रांसफरिंग टू द कंपनी, it is a totally transferring to another person, that is why you have to pay the stamp duty. इसके बाद आया था फेमस केस लॉ न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है, दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ ए शेयर होल्डर इज एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपनी। क्या एक्सपीरियंस शेयर होल्डर का, किसी शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस उस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इट वॉज डिसाइडेड इन न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड केस। तो इसको एक बार समझ लीजिए। कोर्ट ने इस केस में ऐसा बोला है कि नॉर्मली ये क्या बोल रही है कोर्ट? नॉर्मली व्हेन अ पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, व्हेन इंडिविजुअल पर्सन फॉर्म अ कंपनी, इनका जो एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपनी। अब हुआ क्या था, गवर्नमेंट का टेंडर था और गवर्नमेंट के टेंडर के लिए इस कंपनी ने अप्लाई किया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट देयर वर सर्टेन टर्म्स दैट कि इट शुड हैव एक्सपीरियंस, कंपनी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेट्स से 5 इयर्स का। सो कंपनी के पास, कंपनी नई फॉर्म हुई थी और कंपनी के पास नहीं था, लेकिन जिन्होंने फॉर्म की थी उनके पास वो एक्सपीरियंस था। तो क्वेश्चन आया था वेदर शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस क्या कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है? तो कोर्ट ने कहा नॉर्मली द शेयर होल्डर्स एक्सपीरियंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपनी, but when it is clear that company is formed by a joint venture, it's a joint venture of another companies, then अगर कंपनीज ही उसकी मेंबर्स हैं दूसरी कंपनीज और उनका एक्सपीरियंस उस केस में इस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है फॉर द गवर्नमेंट टेंडर। सो अगेन सुन लीजिए, एक्सपीरियंस ऑफ ए शेयर होल्डर इज नॉर्मली नॉट ट्रीटेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपनी, बट इट इज when it is clear that company is a joint venture of different companies, then in such case its constituent company जो member है उसका experience उस company का experience माना जा सकता है। इसी के साथ एक और केस लॉ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। इंडिजेंट पुअर पर्सन, यानी इंडिजेंट का मतलब पुअर पर्सन, क्या कोई कंपनी है उसको पुअर पर्सन भी माना जा सकता है? तो यह क्वेश्चन आया था वेदर कंपनी इज अ पर्सन और नॉट। तो यहां पर बोला गया है यस, कंपनी इज अ पर्सन and not only person, it can be treated as a poor person as well, and the benefit which are provided to poor person, it can also avail the benefit of poor person. Now let's say the next property, whether a company is a artificial person. Yes, no doubt about that, company is a artificial person.
Why it is artificial person? Because it is created by law. It is not comes into existence by natural birth. जैसे human beings natural birth से आते हैं, वैसा ये नहीं आती है. It is created by the law and it is wound up by the law. It is invisible. ये दिखती नहीं है. It is intangible. इसको आप छू नहीं सकते. Acts through, और ये जो काम करती है ये अपने, ये काम करती है थ्रू रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर. सो वॉट एवर इट टेक्स द डिसीजन, इट takes the decision through resolution which are passed by board of director and shareholder. So it is totally a artificial person. इसी के साथ वापस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर आप केस लिख सकते हैं. इंडिजेंट पर्सन, दैट इज अ पुअर पर्सन का केस. नेक्स्ट इसका फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी. इसका मतलब समझ लीजिए. नॉर्मली एक पर्सन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको लॉसेस हो जाते हैं, लेट्स से 30 लाख रुपीस के लॉसेस हो गए, तो इसको अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है वो भी बेच के इसको ये लॉसेस को क्लियर करना पड़ता है, इसकी लायबिलिटी को चुकाना पड़ता है. बट in case of a company, liability of shareholder is limited. How it is limited? Let's see. Suppose this is a company and this is one shareholder. He invests the money into this company in the form of shares में पे वो पैसा लगाता है. मान लीजिए एक शेयर इसका 100 रुपए का है. If one share is of 100 rupees, this shareholder pays 100 rupees to this company, then he need not to pay any further amount. Even if company की liability 900 rupees आ गई है, तो कंपनी की liability है, it is not the shareholders की personal property को कुछ भी नहीं होगा. Shareholder is not required to pay this 900 of company's debt from his personal property. तो फिर लायबिलिटी फिर कहां तक रहेगी शेयर होल्डर की? तो लेट्स सी. द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर. सपोज 100 रुपीज का शेयर ले लिया है शेयर होल्डर ने, बट ही हैज पेड ओनली 60 रुपीज ही पे किए थे कंपनी को, अभी 40 रुपए पे करना बाकी था. सो इन दैट केस व्हाट इज द अनपेड अमाउंट? द अनपेड अमाउंट इज 40 रुपीज. So shareholder is liable to maximum pay unpaid amount of 40 rupees on the shares taken by the shareholder, not more than that. तो पहली liability इसकी limited है up to the unpaid amount on share. और अगर ये कंपनी गारंटी कंपनी है, गारंटी कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं जिसमें शेयर होल्डर गारंटी देता है कि आई विल गिव अप टू दिस अमाउंट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. सो लेट्स से देयर इज अनदर शेयर होल्डर who has given a guarantee of 500 rupees, guarantee of 500 rupees. So in this case the liability of this shareholder to pay for the company is only up to 500, that is the amount guaranteed. So this shows that liability of a shareholder is limited up to the amount unpaid on shares or amount guaranteed by the shareholder. But there is one exception. If you form a unlimited company नाम से ही पता चल रहा है. If you form a unlimited company, then the liability of members will be unlimited. But वैसी कंपनी नॉर्मली लोग फॉर्म ही नहीं करते. ये लिखने के साथ apart from this you also have to quote बकलेस, जस्टिस बकले के जो स्ट्राइकिंग रिमार्क थे वो आपको समझना भी पड़ेंगे और लिखना भी पड़ेंगे. He said that concept of limited liability has probably done more than any legislation last 50 years for the prosperity of the country. आज आपके पास जितनी भी गाड़ी घोड़े मोबाइल वगैरह हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कंपनी एंड इट्स लिमिटेड लायबिलिटी फीचर. अब ये कैसे होता है ये भी समझ लीजिए. नॉर्मली वेन एवर यू हैव टू स्टार्ट अ प्लांट, ह्यूज प्लांट लगते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना रहते हैं, उसके लिए ह्यूज कैपिटल लगता है, ह्यूज कैपिटल.
नाउ लिमिटेड लायबिलिटी जो फीचर है, इससे क्या होता है कि इवन छोटे छोटे लोग जिनका छोटी छोटी इनकम होती है, छोटी छोटी इनकम, कोई ठेले वाला है, रिक्शा वाला है, या फिर कोई मजदूर है, या वो भी अब बेफिक्र होके, क्योंकि उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, उनको उससे ज्यादा पे कभी भी नहीं करना पड़ेगा और साथ में प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं, तो बिना डरे सभी की तरफ से कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कोई 10 रुपए कर रहा है, कोई 1000 रुपए कर रहा है, कोई 5000 रुपए कर रहा है, कोई 1 लाख रुपए कर रहा है। इससे होता क्या है, ऑल पर्सन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी, तो कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस जमा हो जाते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कि ये इजीली फंड रेस कर लेता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यू कैन सेट अप बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, and the economy of the country will grow, and it grows because of this limited liability concept. But as I already mentioned, there are certain exception और exceptions आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सारे कोट करने एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। There are exception to limited liability, यानी limited liability will not apply, concept of limited liability will not apply in following cases. Section 77 says that furnishing any false information और incorrect information अगर आपने दी है इनकॉर्पोरेशन के समय, तो ऐसे में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सिमिलरली 339, इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और आपने कुछ फ्रॉड किया है क्रेडिटर्स के साथ, तो ऐसे में भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सेक्शन 322C says that if you form an unlimited company, then liability is automatically unlimited. Section 35(3) says that prospectus has been issued with an intent to defraud. अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दिया है कंपनी के शेयर्स लेने के लिए, परचेस करने के लिए आपने लोगों को इशू किया है विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, फ्रॉड का इंटेंशन है, तो ऐसे केस में भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। 75 सेक्शन सेज दैट व्हेन अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन, छोटे छोटे पर्सन से कंपनी डिपॉजिट लेती है और अब डिपॉजिट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, and if this company does not repay the deposit or does not pay the interest thereon, then the person's liability will become unlimited. तो ऐसे में भी liability of members or directors will become unlimited. Then section 224 says that report made by inspector, ऐसा इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जिसमें बोला गया है fraud has been committed by this company, so in this case also the liability may go unlimited.